Friends, so now let us start accounting in the books of transferor. Let us start accounting in the books of transferor company. So check over here. We will, as you know, as you already we have seen that accounting in the books of transferor means basically transferor transfers all the assets, and therefore in the books of account transferor we will be preparing realization account, because assets and liabilities, basically the whole of the business is being getting realized, right? If A limited is taking over the business of B limited, so B limited is transferor, B limited will transfer its assets, right? And in this case B limited will prepare realization account in the books of B limited. So in today's example we would be seeing this B limited from the perspective of B limited, that is transferor. As we have, as you know, we have already seen the accounting in the books of transfer, that is basically the 6 steps process which I had told you in class and even in the revision lecture of accounting part, right? In this case, just I will shift it over there. See, check, it was over here. In the books of transferor assets and liabilities are transferred. Over here, transferor assets and liabilities are transferred to realization account, and 6 steps accounting framework या फिर flow is followed. What was that 6 steps? What was those six steps? First of all, transferring all assets and liabilities to realization account, then recording PC, then transferring the remaining items of the balance sheet. What are the remaining items? Generally, if assets and liabilities अगर transfer यहाँ पे हुए हैं, तो what would be remaining with us? The remaining would be obviously the shareholders funds part, right? The part of shareholders fund, so that transferring that part to shareholders account, then realization, calculating, computing realization profit, and then transferring that to shareholders account, then actually realizing the purchase consideration जो यहाँ पे record किया था वो actual में realize करना, कंपनी में ले आना, सामने वाली पार्टी से जिसने बिजनेस परचेस किया है आपका उससे ले आना कंपनी में, एक्चुअली रियलाइजिंग द पीसी, and once the PC is realized you are liable to distribute that among shareholders among shareholders. तो ये सारे चीज़ें 6 steps करना, and then your accounting would be sorted, accounting in the books of transfer would be sorted, right? तो इसी पे एक सम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल 5. बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर एज फॉलोज. पता नहीं कौन किसको एक्वायर कर रहा है, बट दोनों के बैलेंस शीट्स यहाँ पे दिए गए हैं. प्रेफरेंस शेयर्स है, शेयर कैपिटल भी है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी है 10 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़. देन रिजर्व्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, रिजर्व्स हो गए बेसिकली दोनों. देन क्रेडिटर्स है लाइबिलिटीज़ में हमें. देन एसेट साइड गुडविल है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट्स है, स्टॉक है, डेटर्स है एंड बैंक बैलेंस है. फाइन, सब कुछ है. देन additional information में देखो, a new company called AB Limited was formed to take over both companies on following terms. मतलब new company setup की है, that means it is the problem on amalgamation पे प्रॉब्लम है. देखो, एंड अभी हम किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं? वी आर डूइंग अकाउंटिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रांसफरर. तो इन दिस केस AB लिमिटेड इज न्यूली फॉर्म्ड कंपनी विच विल टेक ओवर द बिजनेसेस, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस ऑफ A लिमिटेड एंड B लिमिटेड, राइट? अग्री? सो ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड बन गए ट्रांसफरर, जो बिजनेस ट्रांसफर करेंगे. तो उनके बुक्स में, दोनों के बुक्स में अलग अलग होगा, ए लिमिटेड के बी लिमिटेड में अलग अलग रियलाइजेशन अकाउंट बनेंगे, अदर अकाउंट जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के बनते हैं, एंड पीसी जो रियलाइज होता है एक्चुअल में, वो जो 6 स्टेप्स है वो बेसिकली दोनों को अलग अलग अप्लाई होंगे खुद के अपने अपने बुक्स में. आई होप यू आर गेटिंग इट. फाइन. then check the basic this what we say amalgamation was on following terms. A limited was valued worth rupees 20 lakhs. Okay, A limited का value बताया है, and purchase consideration was paid by issue of equity shares of rupees 10 each at a premium of 6 per share. Okay, so they are directly telling you that A limited का worth valuation 20 lakhs है. So do you need to compute any purchase consideration? No, it is already given ना, it is a lump sum payment. Basically lump sum method of purchase consideration याद आ रहा है, तो वो है ये. फाइन. सो 20 लाख का पीसी अग्रीड है ए लिमिटेड के लिए, एंड वो कैसे डिस्चार्ज होगा? बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स. कितने इक्विटी शेयर इशू होंगे पता नहीं, पर 10 रुपीज़ का इक्विटी शेयर, जिसका शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ होगा एंड 6 रुपीज़ प्रीमियम, तो एक शेयर होगा इशू 16 रुपीज़ पे बेसिकली, राइट? अग्री?
सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू होंगे, अगर एक ये 20 lakhs टोटल पे करना है एंड एक शेयर 16 का इशू होगा तो 20 lakhs डिवाइडेड बाय 16 अगर मैंने किया तो दैट कम्स टू 1,25,000 1,25,000 इतने शेयर्स इशू होंगे फाइन। देन आगे देखो बी लिमिटेड वॉज कंसिडर वर्थ रुपीज 8 लाख। सिमिलरली बी का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू है 8 लाख रुपीज एंड टू बी पेड कैसे डिस्चार्ज कैसे होगा, बी को पेमेंट कैसे करेंगे एट द रेट ऑफ 10 एट द रेट रुपीज 16 पर शेयर। टू बी पेड इन इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 एट रुपीज 16, तो एक शेयर फिर से 16 का इशू होगा तो 8 लाख रुपीज एक शेयर अगर 16 का इशू होगा तो 50,000 शेयर्स, ये बन गए 50,000 शेयर्स। काइंडली नोट कि ऊपर 6 रुपीज़ प्रीमियम था, यहाँ पे 16 रुपीज़ वैल्यू ऑफ शेयर दिया है, 16 का प्रीमियम मत कंसिडर करना, 26 कर क्या होगे नहीं तो फाइन, सिली मिस्टेक नहीं करना है। दैट मीन्स यहाँ पे 1,25,000 शेयर्स इशू होंगे 25,000 एंड यहाँ पे 50,000 शेयर्स इशू होंगे। न्यू कंपनी सी लिमिटेड इशू करेगी अपने के लिए, ट्रांसफरर के बुक्स में ए लिमिटेड बी लिमिटेड के उनके इंडिविजुअल बुक्स में शेयर्स आ जाएंगे, इतने शेयर्स आ जाएंगे। ये शेयर्स किसके हैं, सी लिमिटेड के हैं, राइट। सी मीन्स आई मीन ए बी लिमिटेड, द न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, फाइन। Then liquidation expenses amounted to 8,000 rupees and 4,000 rupees for A Limited and B Limited respectively, which were paid by AB Limited. तो AB Limited ने पेमेंट किया है लिक्विडेशन एक्सपेंस का, फाइन। AB Limited ने किया है तो फाइन, ठीक है, बाद में देख लेंगे। रिकॉर्ड, यू आर एक्सपेक्टेड टू क्या करना है, देखो रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड के बुक्स क्लोज करने के लिए जर्नल एंट्रीज पास करो एंड नेसेसरी लेजर अकाउंट्स ओपन करो। तो लेजर अकाउंट्स में क्या ओपन होगा, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट। एंड देन लास्ट में शेयर होल्डर्स अकाउंट वगैरह ओपन करेंगे, जिनको पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो पेमेंट रिसीव हो जाएगा। तो 6 स्टेप्स अकाउंटिंग फ्लो करते हैं, पहले एंट्रीज पास करते हैं, उसके ऊपर से लेजर बनाएंगे, मैं एक के बुक्स में करूँगा, आप दूसरे के बुक्स में घर पे सॉल्व करोगे ऑन योर ओन, फाइन। तो अभी आई विल बी डूइंग इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, मैं करूँगा, फाइन। लेट अस स्टार्ट जर्नल एंट्री। 6 स्टेप्स का अकाउंटिंग फ्लो याद आ रहा है। फर्स्ट, ट्रांसफर ऑल द एसेट्स, याद रखो, हाँ याद रखो, फ्लो भूलना नहीं है। वेयर इज दैट, लेट मी सी, ये रहा, ये फ्लो भूलना नहीं है, एक ही मिनट, देखो ये फ्लो भूलना नहीं है। फर्स्ट, ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, देन रिकॉर्ड पीसी, then transfer remaining items, then compute realization profit, then actually realize the PC and then distribute it to shareholders। ये वाला फ्लो भूलना नहीं है, फाइन। तो इसी फ्लो में करते जाते हैं। इफ़ यू वांट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ दिख नहीं रहा बट फिर भी फाइन। आगे अभी देखो, फर्स्ट ट्रांसफरिंग ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैं पहले एसेट्स ट्रांसफर करूंगा, बाद में लाइबिलिटीज ट्रांसफर करूंगा, ए लिमिटेड के बुक्स में करूंगा। देखो एसेट्स कौन कौन से हैं, मेरे को सारे एसेट्स ट्रांसफर करना है। देखो गुडविल, मेरे पास गुडविल है, मैं गुडविल भी ट्रांसफर करूंगा। सर इसमें ऐसी कोई एसेट है, ऐसी कोई एसेट लेट्स अज्यूम अगर बताई गई है यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक हाथ कोई एसेट, तो क्या आप उसको ट्रांसफ़र करोगे या नहीं करोगे, या उसको कंसीडर करना है या नहीं करना है। परचेस मेथड में है तो करना है, ऐसा कुछ है क्या, बताओ, टेल मी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलाइजेशन को वो ट्रांसफ़र होगा, वो रियलाइज होगा, बैलेंस शीट नील करनी है ना, तो जो बुक्स में है उसी को ट्रांसफ़र करो, जो बुक्स में नहीं है उसको मत ट्रांसफ़र करो, कोई भी मेथड होने दो। आई होप आपको समझ रहा है। पीसी को वैल्यू करना है सर, पीसी को वैल्यू करना है, हाँ पीसी को वैल्यूएशन करेंगे ना। पीसी के लिए नेट एसेट का कैलकुलेशन अगर करते, पीसी के लिए यहाँ पे तो पीसी डायरेक्टली गिवन था 20 लाख एंड 8 लाख, पर अगर करते तो इन दैट केस मैं, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट लाइबिलिटी रहती तो मैं कंसिडर करता। रियलाइजेशन को ट्रांसफ़र तभी तो होगा जब वो बुक्स में होगा, अगर बुक्स में कोई चीज़ है ही नहीं तो वो क्यों ट्रांसफ़र होगी ना, समझ लो। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट वाले आइटम्स ट्रांसफ़र होंगे, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में जो लिखा गया है, जितने वैल्यू पे लिखा गया उतने वैल्यू पे। इसकी फेयर वैल्यू, लेट्स अज्यूम ये बिल्डिंग ऑफिस, इसकी फेयर वैल्यू 4 लाख नहीं है, दी गई है नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, लेट्स से 5 लाख है, दी गई है, लेट्स अज्यूम, फाइन। तो आप जब ट्रांसफ़र करोगे रियलाइजेशन को, 5 लाख को करोगे या 4 लाख को करोगे, 4 लाख को ही करोगे,
बिकॉज जो बुक्स में है वही तो रियलाइज होगा, वही तो ट्रांसफ़र होगा। समझ में आ रही है बात? उसको तो नील करोगे, जो नहीं है उसको कैसे नील कर सकते हो? फाइन। सो मैं गुडविल ट्रांसफ़र करूँगा। ट्रांसफ़र कैसे करूँगा? एसेट को डेबिट बैलेंस रहता है उसको क्रेडिट करूँगा एंड रियलाइजेशन को डेबिट करूँगा। एंट्री क्या पास करूँगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट गुडविल अकाउंट 2,80,000, बिल्डिंग अकाउंट 4,00,000, to plant and machinery account 3 lakh, to furniture fixture 1 lakh 40, to investments 2 lakh, to stock 1 lakh 60, to debtors 80,000, to bank balance 40,000। सर बैंक बैलेंस भी करना है? बैंक बैलेंस ऑलरेडी रियलाइज्ड है। हाँ ठीक है ना, रियलाइज्ड है, आई नो, कर लेते हैं ये लोग। फाइन, तो करना है। देखो सेम एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करूँगा 2, गुडविल 2,80,000, बिल्डिंग 4,00,000, प्लांट एंड मशीनरी 3,00,000। मैं चेक करता हूँ 2,80,000, 4,00,000 और 3,00,000, 2,80,000, 4,00,000 और 3,00,000। फाइन। उसके बाद फर्नीचर 1,40,000 और 2,00,000 बाद में, फर्नीचर फिक्सचर 1,40,000 और इन्वेस्टमेंट्स 2,00,000। परफेक्ट, वही एंट्री है सेम टू सेम। देन स्टॉक आया, डेटर्स आया एंड बैंक बैलेंस आया 1,60,000, 80, 40, 1,60,000, 80, 40। ये सारे एसेट्स मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये सारे एसेट्स मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिए। चेक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सारे एसेट्स मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, आई होप आपको समझ रहा है, आई होप आपको समझ रहा है। मैंने सारे एसेट्स ट्रांसफ़र किए, मैंने सारे एसेट्स ट्रांसफ़र किए। अभी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करूँगा बिकॉज फर्स्ट स्टेप वॉज ट्रांसफरिंग ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करूँगा। चेक, लाइबिलिटी कौन कौन से है मेरे पास? क्या रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस मेरी लाइबिलिटी है? नहीं, एक ही लाइबिलिटी है मेरे पास, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वाली। तो 40,000 ट्रांसफ़र करूँगा रियलाइजेशन को। तो चेक मैं सेकंड एंट्री वुड बी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस रहता है तो उसको डेबिट करूँगा 40,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट ये रहा। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, 6 स्टेप में से फर्स्ट स्टेप हो गया, ट्रांसफरिंग ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड, रिकॉर्डिंग परचेज कंसिडरेशन। सर परचेज कंसिडरेशन का दिया गया था? यस दिया गया था। अगर नहीं दिया रहता तो सर, तो हम निकालते। सर कैसे निकालते? नेट पेमेंट मेथड होता तो नेट पेमेंट से निकालते, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को ही जितना पेमेंट किया उतना ही ऐड करते, डिबेंचर होल्डर्स को कुछ किया रहता तो वो नहीं करते एंड फिर कंप्यूट करते। ओके समझा सर, याद आया। अदर नेट एसेट मेथड रहता तो सर, नेट एसेट मेथड रहता तो ये सारे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करते। क्या बुक वैल्यूज पे करते? अभी जिस पे एंट्री किया उस पे नहीं, फेयर वैल्यू पे करते, फेयर वैल्यू पे करते। उस पर कोई अनरिकॉर्डेड रहता सर, सो एसेट मतलब बैलेंस शीट के बाहर रहता एसेट तो उसको कंसिडर करते? यस करते। क्या सर उसमें फिक्टिशियस एसेट कंसिडर करते? नहीं करते। आई होप आपको ये सब चीज़ें याद आ रही है, कैसे लिंक्ड है एक दूसरे से, समझ में आ रही है। फाइन, तो यहाँ पे सिर्फ लमसम मेथड है, लमसम मेथड है तो मुझे कोई कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली परचेज कंसिडरेशन दिया गया है। ए लिमिटेड का मैं देख रहा हूँ तो ए लिमिटेड के केस में 20 लाख रुपीज़ 20 लाख रुपीज़। चेक चेक, एंट्री पास की मैंने, एंट्री पास की मैंने रियलाइजेशन अकाउंट, एक मिनट, एंट्री पास की मैंने परचेज कंसिडरेशन की, सॉरी 20 लाख रुपीज़ है, रियलाइजेशन के अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आता है परचेज कंसिडरेशन। तो मैं क्रिएट करूँगा रिसीवेबल, ए बी लिमिटेड से मुझे पैसा आएगा, ए बी लिमिटेड से मुझे पैसा आएगा 20 लाख रुपए, तो आई एम शोइंग रिसीवेबल डेबिट एसेट टू रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूँ। अगेंस्ट बिजनेस आ रहा है ये, अगेंस्ट बिजनेस मतलब बिजनेस के लिए आ रहा है, तो रियलाइजेशन को सारा एसेट्स लाइबिलिटीज ट्रांसफर किया है तो उसके अगेंस्ट कर रहा हूँ, तो रियलाइजेशन को ही क्रेडिट करूँगा मैं। सो मैंने एंट्री पास की, AB Limited account debit being receivable from AB Limited to realization account 20 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपीज़। ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया आउट ऑफ द 6 स्टेप्स। रिकॉर्डिंग परचेज कंसिडरेशन, देखो मैंने परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड किया, यही इफेक्ट्स अभी ये 3 एंट्रीज मेरे हो गए हैं। देखो ये 3 एंट्रीज हो गए हैं मेरे। दिस इज द फर्स्ट एंट्री आई डिड, दिस इज द सेकंड एंट्री आई डिड, दिस इज द थर्ड एंट्री आई डिड। ये तीनों के इफेक्ट्स मैं आपको अगर रियलाइजेशन में दिखाना चाहूँ तो ये ऐसे होंगे। देखो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे देखो सारे एसेट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
8 8 8 एसेट्स थे, 8 एसेट्स आ गए। लाइबिलिटी साइड पे एक लाइबिलिटी आ गई। एंड अभी जो परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड किया, क्या एंट्री पास की थी, देखो ना, ए बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन, यहाँ पे रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 20 लाख रुपीज़। ये तीनों एंट्रीज के इफेक्ट रियलाइजेशन में मैंने साइमल्टेनियसली डाल के लिए। जब सम सॉल्व करोगे ऐसे सॉल्व करना है, साइमल्टेनियसली डाल के लिए। फाइन, सो नाउ आई एम डन विद 2 स्टेप्स। नाउ मेरी थर्ड स्टेप, ट्रांसफर अदर बैलेंस शीट का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो ट्रांसफर करो रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में। देखो देखो कौन सा बचा हुआ है सर, देखो ना, ये तो सारे 8 के 8 एसेट्स पूरे खत्म हो गए, ये तो पूरा एसेट ट्रांसफर कर लिए हमने। यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में एक लाइबिलिटी ट्रांसफर करी, बचा क्या सर, बचा ये पार्ट, बचा इतना पार्ट। देखो ना कौन कौन सा है सर, देखो ना कौन कौन सा है, कैपिटल है एंड रिजर्व्स है, कैपिटल है एंड रिजर्व्स है। ऑब्वियसली पीएनएल को भी मैं रिजर्व ही बोल रहा हूँ, तो वो भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व ही है। तो यस, तो ये मैं ट्रांसफ़र करूँगा, किसको जाएगा ये सर, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाएगा, और जो अदर है इक्विटी कैपिटल तो वो इक्विटी को जाएगा, रिजर्व्स किसको जाएंगे, इक्विटी को जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस किसको जाएगा, इक्विटी को जाएगा, सारी चीज़ें इक्विटी को ही जाएगी। सिर्फ प्रेफरेंस वाला प्रेफरेंस को जाएगा, सिर्फ प्रेफरेंस वाला प्रेफरेंस को जाएगा। तो ये मैं ट्रांसफ़र करूँगा उनके अकाउंट्स में, उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में, मतलब ये भी चीज़ें क्लोज कर दूँगा। जैसे ये एसेट्स ट्रांसफ़र करने के लिए एसेट्स को क्रेडिट किया था, एसेट को डेबिट बैलेंस रहता है, राइट, तो एसेट को क्रेडिट किया था, देखो ना फर्स्ट एंट्री, ये देखो सारे एसेट्स को क्रेडिट किया था, राइट। तो सिमिलरली लाइबिलिटीज़ के टाइम लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे डेबिट किया था, लाइबिलिटी देखो क्रेडिटर्स को डेबिट किया था, क्यों, तो उनको क्रेडिट बैलेंस रहता है, राइट। तो सिमिलरली इनको भी क्रेडिट बैलेंस रहता है, राइट। ये देखो ये चारों आइटम्स को भी क्रेडिट बैलेंस रहता है, राइट। तो इनको मैं डेबिट करूँगा, इनको मैं डेबिट करूँगा एंड टू करूँगा, टू किसको ट्रांसफ़र करूँगा, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला पार्ट ट्रांसफ़र करूँगा, बचा हुआ पार्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र करूँगा, बचा हुआ पार्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र करूँगा। आई होप आपको समझ रहा है क्या चल रहा है, फाइन। तो ये मेरी थर्ड स्टेप हो जाएगी। इसके लिए मैं एंट्री क्या पास करूँगा, देखो ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 4 लाख एंड देन ये एक ट्रांसफ़र हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ये तीनों चीज़ें मिला के ट्रांसफ़र करूँगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तीनों का मिला के टोटल। आई होप आपको समझ रहा है। तो यही एंट्रीज नीचे पास किए हो रहेंगे, देख लो एक बार, या फिर साथ में मिलके भी पास किए रहेंगे, आई डोंट नो। ये देखो ये देखो, ये एक बीच वाली एंट्री छोड़ दो, उनका फ्लो अलग है, ठीक है फाइन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मतलब प्रेफरेंस शेयर को भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब ये अकाउंट भी बेसिकली उन्होंने क्लोज कर दिया। कौन सा वाला, ये वाला 4 लाख वाला, ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, फाइन। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट हमने क्या बोला था, बचे हुए बाकी 3 चीज़ें, ये देखो, ये रही आपकी 3 चीज़ें, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इनको डेबिट किया एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्रेडिट किया, तीनों को ट्रांसफ़र किया इक्विटी शेयर होल्डर्स में, तीनों को ट्रांसफ़र किया इक्विटी शेयर होल्डर्स में। दैट मीन्स बेसिकली ये भी आपका हो गया, ये भी आपका बैलेंस शीट वाले ये आइटम्स भी क्लोज हो गए। तो मतलब नाउ आई कैन टेल कि मैंने पूरी बैलेंस शीट क्लोज कर दी है, पूरी बैलेंस शीट, ये सारे एसेट्स क्लोज हो गए हैं, ट्रांसफ़र हो गए रियलाइजेशन को, ये लाइबिलिटी भी ट्रांसफ़र हो गई रियलाइजेशन को। तो मेरे पास एक रियलाइजेशन अकाउंट ओपन है, और ये जो ट्रांसफ़र हुए हैं 4 चीज़ें, 2 अकाउंट को मिलकर ट्रांसफ़र हुए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, तो ऐसे करके मेरे पास और 2 अकाउंट ओपन है। तो इन ऑल मेरे पास 3 अकाउंट्स ओपन हैं, दैट्स इट। कौन कौन से, रियलाइजेशन सर, क्यों, एसेट्स लाइबिलिटीज अभी तो ट्रांसफ़र किए वहाँ पे इसलिए, सेकंड इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट एंड थर्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, बस दैट्स इट। बाकी सब अकाउंट्स, मेरी पूरी बैलेंस शीट नील हो गई। मुझे वही तो करना है ना, मैं ट्रांसफरर हूँ, सारे एसेट लाइबिलिटीज सेल करने हैं, तो डैट मीन्स ट्रांसफ़र करने, तो बैलेंस शीट नील करनी है, तो बैलेंस शीट नील कर दी कर दी, समझा। तो ये एंट्रीज मेरी, ये भी एंट्री मेरी हो गई 4th एंड 5th, तो ये मैं इसको मैं मिला के ट्रांसफ़र तो अदर बैलेंसिंग बैलेंस ट्रांसफर बैलेंसिंग आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट टू रिमेनिंग आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, वो ट्रांसफ़र करने हैं, वो नील करने हैं, शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफ़र करने हैं। तो ये मेरी थर्ड स्टेप हो गई, ये मेरी थर्ड स्टेप हो गई,
समझा? इसके बाद फोर्थ स्टेप क्या था? चेक रिमेंबर, रिकॉल करो वो 6 स्टेप वाला फ्लो क्या था? फोर्थ स्टेप क्या थी? फोर्थ स्टेप वाज कंप्यूट रियलाइजेशन प्रॉफिट एंड देन ट्रांसफर दैट रियलाइजेशन प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो देखो, रियलाइजेशन प्रॉफिट किसको ट्रांसफर होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को होगा। तो रियलाइजेशन प्रॉफिट पहले कंप्यूट करो, तो उस प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए अपने को रियलाइजेशन अकाउंट में जाना पड़ेगा। ये रहा मेरा रियलाइजेशन अकाउंट, ये रहा मेरा रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने अब तक उसमें सारे एसेट्स ट्रांसफ़र किए हैं, लाइबिलिटी ट्रांसफ़र किए हैं एंड परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड किया है। अगर मैं डिफरेंस लूँ, ये भी था वो एसेट में, ये भी इंक्लूडेड है ना। तो अगर मैं इसका डिफरेंस ले लूँ तो एक साइड पे है 20 लैक्स और 40,000, सो टोटल मिला के 20,40,000 माइनस इस साइड सारे एसेट्स एक एक माइनस करता हूँ, माइनस 2,80,000 माइनस 4 लैक्स माइनस 3 लैक्स माइनस 1,40,000 माइनस 2 लैक्स माइनस 1,60,000 माइनस 80,000 एंड माइनस नीचे दिया गया 40,000। दिस कम्स टू 4,40,000, दिस कम्स टू 4,40,000। ये वाला डेबिट साइड पे आया है, दैट मीन्स ये प्रॉफिट है। डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आया है, दैट मीन्स ये प्रॉफिट है, बिकॉज क्रेडिट साइड ज़्यादा है रियलाइजेशन का, इसलिए डेबिट पे बैलेंसिंग फिगर आया एंड क्रेडिट ज़्यादा है, मतलब ये प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट मैं ट्रांसफ़र करूंगा किसको? कंप्यूट किया मैंने 4,40,000 एंड नाउ कंप्यूट एंड ट्रांसफ़र। फोर्थ स्टेप वाज कंप्यूट एंड ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र कर दूंगा मैं यहाँ से इक्विटी शेयर होल्डर्स में, इक्विटी शेयर होल्डर्स में। ये देख, ये रहा 4,40,000, ये ट्रांसफ़र कर दिया मैंने इक्विटी शेयर होल्डर्स में। तो देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स में अब तक क्या क्या 3 चीज़ें ट्रांसफर थी। ये एंट्री देखो, ये एंट्री देखो इक्विटी शेयर्स में, ये कहाँ पे ट्रांसफ़र किया है? ये 11,60,000 कहाँ पे ट्रांसफ़र किया? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, बराबर। तो ये देखो, ये 3 एंट्रीज इक्विटी शेयर होल्डर्स की यहाँ पे भी साइमल्टेनियसली आपने दिए होंगे। ये देखो, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड P&L, ये 3 वहाँ से आ गए यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ये एक एंट्री आ गई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाली, राइट। ये फोर्थ वाले पॉइंट से, ये फोर्थ वाले ये वाला पॉइंट है ना, इसमें ये 4 लाख आ गए एंड ये 11,60,000 टोटल आ गए, राइट। अभी ये प्रॉफिट भी आ गया इक्विटी शेयर होल्डर्स को। क्यों? अल्टीमेटली जो बिजनेस सेल पे प्रॉफिट होगा वो किसको जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स की तो जाएगा ना। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी आ गया एंड मेरा जो 3 अकाउंट्स ओपन थे उसमें से एक अकाउंट बंद हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट बंद हो गया। चेक, रियलाइजेशन का बैलेंस हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ये यहाँ पे रियलाइजेशन का बैलेंस हमने ट्रांसफ़र कर दिया एंड रियलाइजेशन अकाउंट बंद हो गया। आई होप आपको समझा है। फाइन। तो फिर अभी मेरे पास 2 अकाउंट्स ओपन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और दोनों को क्रेडिट बैलेंस दिख रहे हैं। देखो 4 अकाउंट, मतलब चार बार डेबिट किया है, इसको एक बार डेबिट किया है, सॉरी क्रेडिट किया है, क्रेडिट किया है, इसको भी क्रेडिट किया है, इसको भी क्रेडिट किया है, तो इसमें क्रेडिट बैलेंस है विच इज शोइंग कि हमको पे करो, हमको पे करो। दे आर सेइंग कि हमारे अगेंस्ट लाइबिलिटी है आपकी, समझा? क्यों? तो ऑब्वियसली उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तो बिजनेस सेल होने के बाद उनको पैसा तो जाएगा ना कुछ। तो नाउ लेट अस रीपे देम, इक्विटी शेयर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल उनको रीपेमेंट कर देते हैं। उसका रीपेमेंट मतलब उनको फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो कुछ भी सरप्लस बचा है उसमें से। फाइन। तो अभी पीसी एक्चुअल में रियलाइज करो उनसे। पीसी हमने सिर्फ बुक किया था, क्या पीसी आया था क्या? ये यहाँ पे देखो, AB लिमिटेड, क्या पीसी आया था अपने को? नहीं आया, नहीं था सर, पीसी आया नहीं था, आने वाला था AB लिमिटेड से। तो अभी एक्चुअल में AB लिमिटेड से ले लो। क्या लेने वाले हो? पैसे कैश लेने वाले हो या इक्विटी शेयर्स लेने वाले हो? जब देखो, जब परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्ड किया था, अच्छा ये भी अकाउंट एक ओपन था, हाँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये भी अकाउंट एक ओपन था AB लिमिटेड। तो जब परचेज कंसिडरेशन बुक किया था तब एंट्री पास क्या की थी? AB लिमिटेड से डेबिट किया था AB लिमिटेड को। देखो सेकंड एंट्री या फर्स्ट एंट्री आई गेस, थर्ड एंट्री, ये देखो AB लिमिटेड अकाउंट डेबिट किया था 2,20,000 से, टू रियलाइजेशन किया था, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट पे ये रहा 2,20,000। तो AB लिमिटेड को डेबिट दिख रहा है, इतने 220 लाख आने वाले हैं उनसे, राइट। 20 लाख इनसे आने वाले हैं और इनको जाने वाले हैं। ये देखो इनका टोटल अगर लिया तो ये भी 20 लाख आ जाएगा। देखो ले लो, टोटल ले लो। ये देखो 16 लैक्स इनको पेएबल, 4 लैक्स इनको पेएबल, टोटल मिला के 20 लैक्स। तो इनसे आएगा पैसा और इनको जाएगा, ख़त्म। ये ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाएगा एक दूसरे के अगेंस्ट, समझा? तो ये अकाउंटिंग ख़त्म होगी। तो फोर्थ स्टेप तक हमने किया था
परचेज कंसिडरेशन को रियलाइजेशन प्रॉफिट निकालना एंड ट्रांसफर करना यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये कर दिया। फिफ्थ स्टेप इज टू एक्चुअली रियलाइज द पीसी। तो रियलाइज करो पीसी, जो रिसीवेबल दिख रहा था एबी लिमिटेड से, उनसे मांग के लो हमारा पीसी दे दो। तो उन्होंने दे दिए, लेट्स अज्यूम उन्होंने शेयर्स दे दिए। उन्होंने कहा था ना क्वेश्चन में, द परचेज कंसिडरेशन इज गोइंग टू बी डिस्चार्ज्ड बाय वे ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। ये देखो एट प्रीमियम समथिंग समथिंग कुछ तो दिया था, राइट। ये रहा, यहाँ पे ये रब कर देता हूँ सब। ये देखो इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 एट प्रीमियम ऑफ 6। तो 20 लाख के बेसिकली शेयर्स मिलने वाले थे, राइट। 20 लाख के शेयर्स मिलने वाले थे एंड नीचे 8 लाख के कुछ तो बी लिमिटेड से मिलने वाले थे। तो ए लिमिटेड का अपन अकाउंटिंग करें तो ए लिमिटेड से बेसिकली 20 लाख के शेयर्स मिलने वाले थे, राइट। तो 20 लाख के शेयर्स मिल जाएंगे अभी ए लिमिटेड से। देखो ए बी लिमिटेड, ए लिमिटेड को मिल जाएंगे, सॉरी ए लिमिटेड को मिल जाएंगे। ये देखो 16 लाख के इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएंगे उसमें से। ये ए बी लिमिटेड के 20 लाख था, तो उसमें से ए बी लिमिटेड, ये रहा ए बी लिमिटेड 20 लाख, उसको ए बी लिमिटेड को मिले शेयर्स। एक मिनट एक काम करते, फ्लो मेरा गलत हो गया, आपको समझेगा नहीं। मैं फिर से बताता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेप 5 वॉज रियलाइजिंग पीसी। हमने दिखाया था ए बी लिमिटेड से रिसीवेबल, ये ए बी लिमिटेड का अकाउंट है, ए बी लिमिटेड से रिसीवेबल। तो अभी एक्चुअली रियलाइज करो, ए बी लिमिटेड से मांग के ले लो। डेटर्स से अगर कैश मांग लिया आपने, सेल्स किया था, डेटर्स से कैश मांग लिया आपने, तो आप एंट्री क्या पास करते हो, कैश कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। सिमिलरली यहाँ पे ए बी लिमिटेड से रिसीवेबल है, तो ए बी लिमिटेड से कैश मांग लो, इक्विटी शेयर्स मांग लो, इक्विटी शेयर्स देने वाली है ना ए बी लिमिटेड, तो इक्विटी शेयर्स मांग लो। तो क्या आ जाएगा आपके पास, इक्विटी शेयर्स विल कम इन, इक्विटी शेयर्स ऑफ ए बी लिमिटेड विल कम इन, दैट इज इन्वेस्टमेंट या फिर एसेट कमिंग इन डेबिट। देयरफॉर शेयर्स इन ए बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगी एंट्री, शेयर्स इन ए बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू ए बी लिमिटेड टू डेटर्स अकाउंट, बेसिकली कि पैसा अभी नहीं आने वाला, नो मोर अ डेटर, देयरफॉर क्रेडिट। सो 20 लाख। नाउ आपके पास क्या है, नाउ आपके पास ये शेयर्स आ गए आपके पास, राइट। ये शेयर्स आ गए। अभी ये शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में बांट दो। ये शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में बांट दो। किसके शेयर्स है ये, ए बी लिमिटेड के, खुद के शेयर्स नहीं है, खुद के शेयर्स इशू होने नहीं चाह रहे, नहीं हो रहे। समझ में आ रही बात। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन ए बी लिमिटेड। जो शेयर्स इन ए बी लिमिटेड आए थे, डेबिट बैलेंस था, उसको अभी क्रेडिट कर दिया, क्योंकि गए अभी। क्यों गए, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिए, तो उनको डेबिट किया, इसको क्रेडिट किया। इन दोनों एंट्रीज का इफेक्ट डालोगे तो दिस वाज योर 6th स्टेप एंड दिस वाज योर 5th स्टेप। एक्चुअली रियलाइज द पीसी, तो यहाँ पे पैसा आया तो रियलाइज किया एंड यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स में। ये दिस वाज योर 6th स्टेप। तो अगर इसके एंट्रीज पास किए, इस पर लेजर पोस्टिंग किया अपनी एंट्रीज का, तो ए बी लिमिटेड से पैसा आना था पहले, वो आ गया इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, इसलिए क्रेडिट हुआ बाय शेयर्स इन ए बी लिमिटेड 20 लाख। एंड शेयर्स इन ए बी लिमिटेड आ गए पहले अपने पास, ये सेकंड इफेक्ट इसका यहाँ पे गया, ये वाला ये यहाँ पे एक इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट यहाँ पे ये वाला, फाइन। तो यहाँ पे पहले शेयर्स आए एंड फिर डिस्ट्रीब्यूट हुए इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अकाउंट में भी इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट को इफेक्ट आया, यहाँ पे डेबिट को इफेक्ट आ जाएगा। ये दो इफेक्ट 16 लाख एंड 4 लाख रुपीज़, 16 लाख एंड 4 लाख। सर ये 16 लाख 4 लाख डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, देखो ना उनको पेएबल था ना ये 16 लाख एंड 4 लाख, तो वो ऑटोमेटिकली 16 लाख एंड 4 लाख पे कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये अकाउंट भी क्लोज हो गया, ये अकाउंट भी क्लोज हो गया एंड ये शेयर्स भी ख़त्म हो गए अभी अपने पास से। तो सारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ अभी ख़त्म हो गया एंड बुक्स क्लोज करने के लिए अभी क्लोज हो गए बेसिकली। तो आई होप आपको समझा है। अगर इफ़ while solving the sum you always stick to those 6 steps, आपका आंसर सही आ जाएगा, सिले मिस्टेक करने का स्कोप नहीं रहेगा। फाइन। सो आई होप आपको समझा है। ये बी लिमिटेड के बुक्स में सेम होगा, सारी चीज़ें सेम होगी, ऐसे ही एंट्रीज पास होंगी, ऐसे ही अकाउंट्स बनते जाएंगे एंड ऐसे ही अकाउंट्स क्लोज होते जाएंगे। आई होप आप वो कर लोगे, आई होप आप वो खुद लाइक ऑन योर ओन आप कर लोगे। फाइन। सो आई होप कि आपका अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी एंड अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर दोनों कवर्ड है, कवर्ड नहीं है तो कवर करो एंड देन उसके बाद एक लास्ट प्रैक्टिस सम का एक वीडियो डालूंगा, तो वो देख लो। फाइन, थैंक यू।